क्या? रॉबिन्स। स्कैरसिटी इंपॉर्टेंट है काफी, नॉट द मोस्ट बट यस एन इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि इसी पे बेस थी हमारी कुछ बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स की। Scarcity is the root cause of all the economic problems. According to Professor Lionel Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Again, सुनी सुनी सी बात लग रही है. How will you use your limited resources to satisfy your wants? Scarcity definition of economics was given by Robbins in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932. Scarcity definition is based on the following fundamental characteristics of human existence, which gives rise to economic problems. What are the root cause of economic problems, or what are the causes of economic problems? Unlimited wants. Resources to satisfy these wants are limited, and the resources have alternative uses. What are the causes of economic problems? What are the causes of central problem? Number one, unlimited human wants. Number two, the resources to satisfy these wants are limited. And number three, these resources have alternative uses. क्या कुछ नया बता रहा हूं? तो बट स्कैरसिटी डेफिनेशन डिराइव कहां से हुई वो ये बता रहे हैं. तो अच्छी बात है सर, ये तो हमें पता है, तो आपका काम आसान होगा ना. Scarcity definition is based on the fundamental characteristics of human existence. According to Robbins, these fundamental characteristics are found everywhere in all countries, no matter how rich they are. US, the most developed nation, तो वो भी ये प्रॉब्लम्स फेस करता है स्कैरसिटी, तो कुछ चीजें तो उनको भी इंपोर्ट ही करनी पड़ती है ना. One of which is oil. Economics deals with how the scarce resources of society would be allocated to satisfaction of different wants. How? Yeh the definition. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, which have how to use the scarce means to satisfy your wants. Scarcity definition given by Professor Lionel Robbins. Scarcity is the root cause of economic problems. Scarcity refers to a situation where resources are not enough to satisfy all the wants of its people. Scarcity is pervasive, it is everywhere, and is a fact of economic life for each and every individual, no matter how rich you are. You would be facing scarcity. अब अदानी को ले लो कि जी वेल्थ है 50 बिलियन, टारगेट है $100 बिलियन, मतलब जो जो लोन लेने पड़ रहे हैं उनको भी. क्यों? क्योंकि बिजनेस बड़ा करना है. मैं कह रहा हूं आपके पास 100 करोड़ है, कम है ज्यादा है? ज्यादा है. आपको बिजनेस करना है जिसकी रिक्वायरमेंट 500 करोड़ है, अब करना पड़ेगा ना लोन. तो फिर स्कैरसिटी हमेशा रहेगी, स्कैरसिटी हमेशा रहेगी. आपके पास जैसे ही आपके पास पहले आपका टारगेट मीट हो जाएगा, नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा. आपका पहला टारगेट ऐसे बस किसी तरीके से 2-3 लाख रुपए महीना कमा ले. जैसे ही वो कमाने लगोगे, आप एक नया खर्चा प्लान कर लोगे जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए महीना चाहिए होंगे. तो स्कैरसिटी हमेशा रहेगी, आप जिस मर्जी लेवल पे हैं, अनलेस हम थॉट प्रोसेस चेंज करें. वो तो एक अलग चीज हो गई, बट इकोनॉमिक्स ये सब इमोशनल बातों पे नहीं बिलीव करता. बट वो कहता है स्कैरसिटी इज परवेसिव, वो हमेशा रहेगी. Scarcity of resources is the basic reason. That is why you have to make a choice. That is why you have to take a decision how to use your limited resources, because the resources are, अगर scarcity होती ही नहीं तो डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि गलत भी हो गए डिसीजन तो कोई दिक्कत ही नहीं. हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वेस्ट हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई कमी नहीं है. बट ऐसा है नहीं. There would be no economic problem if resources were not scarce, but they are scarce. Scarcity affects our daily life. We face various forms of scarcity in our daily life. अब क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेज तो वही हैं. मेट्रो बनाई, बहुत खुशी की बात है, बट सीट मिलती है हमेशा? नहीं मिलती, कभी खड़े होने का आना पड़ता है. तो रिसोर्सेज तो हैं, बट जो वांट्स हैं वो हमारी अनलिमिटेड है.
ह्यूमन वांट मतलब जो डिमांड है इट इज मच मच मोर देन द सप्लाई. The long queues at the railway reservation counters, the crowded buses, trains, metros, shortage of essential commodities, increasing prices of petrol, vegetable. अब किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? शॉर्टेज जब होती है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं. किसी भी चीज की शॉर्टेज जब होती है ना तब उसका प्राइस बढ़ता है. एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे. तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब उसकी शॉर्टेज हो रही है. शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि भैया स्कैरसिटी है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी बढ़ नहीं रही. We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. Without, तो scarcity is the root cause. Scarcity का तो मतलब अच्छे से आपको छपा होना चाहिए मीनिंग. मतलब scarcity का मीनिंग अनक्लियर होगा ना तो फिर सैड है. तो what are the root causes of economic problems? What do you mean by scarcity? Who gave the scarcity definition? Who gave the scarcity definition? तो ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए. रॉबिन्स, लायनल रॉबिन्स. ठीक है जी. Why do we study economics? कोर्स में है. Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy and helps in analyzing problems and the policies of the government. सोचो कितने बड़े बड़े चीजों में काम आने वाला है. मतलब गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ नहीं है, और खासकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट मतलब पॉइंट कि बहुत 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 ज्यादा पैसा मेंटेन करना होता है. मतलब लैक्स ऑफ करोड्स, मतलब आप लिख नहीं पाएंगे इतना पैसा मेंटेन करना होता है गवर्नमेंट को. तो डिसीजन मेकिंग कितना क्रूशियल होता होगा उनके लिए. डिसीजन मतलब कोई रोड भी बनानी है ना, तो कोई बड़ा हाईवे है तो 100 करोड़ 500 करोड़ तो बड़ी नॉर्मल सी बात है. 1000 करोड़ भी लगते हैं, 2000 करोड़ भी लगते हैं. 2000 करोड़ हाईवे बनाने में लग जाते हैं. तो वो तो एक पार्ट है. मतलब ऐसे पता नहीं कितनी डिसीजन उनको हर रोज लेनी है, हर महीने लेनी है, हर साल लेनी है. तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज वहां पे यूज होती है डिसीजन मेकिंग में, रनिंग द इकोनॉमी. तो ऑब्वियसली यू नीड द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्ट लें तो. इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स एक बिल्कुल अलग चीज है, रनिंग द इकोनॉमी बिल्कुल अलग चीज है. एक गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, आईएफएस, आईएएस, आईआरएस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं. दे आर द एक्चुअल पीपल हु आर रनिंग द इकोनॉमी. दे आर द एक्चुअल पीपल हु आर रनिंग द इकोनॉमी. मतलब जो मतलब थिंक टैंक जिसे कहते हैं ना, थिंक टैंक की जो टेक्निकल नॉलेज और जो मतलब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं. अब एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी है. कौन है? नहीं, पर्सन रिचेस्ट उससे कोई लेना देना नहीं है. हु इज मुकेश? सीईओ. सीईओ. अब सीईओ ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ रिलायंस. ठीक है, अब हो गया अपना चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. बट क्या वो काम कर रहे होंगे? काम तो एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं, काम तो एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं. मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. तो अब जैसे मुकेश अंबानी इज टू रिलायंस, वैसे ही श्री नरेंद्र मोदी टू इंडिया. मतलब वो हो गए कंट्रोलर के टॉप मोस्ट पोजीशन वो हैंडल कर रहे हैं. लेकिन काम करने के लिए तो बथेरे लोग चाहिए, काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए. यस और नो? तो मैं कह रहा हूँ वो वहां पे ये टेक्निकल स्किल्स काम आते हैं. क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं. तो डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए. डिसीजन मेकिंग के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए. फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर कोई होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई होगा, तो उन सबको इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए. आरबीआई के पैनल पे कोई होगा तो इनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए. However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word: scarcity. In other words, human wants are greater than the available resources, so there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending human wants. Hence, economics is concerned with the selection of resources under the conditions of scarcity. तो scarcity definition किसने दी? प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स. Scarcity definition.